हेलो एंड वेलकम। अभी अभी हमने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। इन दिस वीडियो वी विल सी what are the things most important that you should know about Republic Day 2024, and in general why is Republic Day important, what exactly changed on Republic Day, and the major awards that you have to remember from Republic Day 2024. So let us start. First thing we need to know is that the theme of Republic Day, तो theme थी हमारे Republic Day की विकसित भारत, that means डेवलप्ड इंडिया, एंड सेकेंडली भारत लोकतंत्र की मातृका. नाउ दिस मातृका इज एक्चुअली मातृका, राइट? सो वी नॉर्थ इंडियंस से मातृका, साउथ इंडियंस दे से मातृका. It's basically India, mother of democracy. That is the theme of our Republic Day. Do remember this because in certain MCQs they can ask you these kinds of things. Secondly, it was an all-women tri-service contingent for the first time in the history of Republic Day. जितने भी वहां पे मार्च कर रहे थे ट्राई सर्विस कंटिंजेंट में, वो सारी की सारी all of them were women. We know that in Agniveers as well as in officer cadre, now women can be part of all the three forces: Army, Air Force and Navy. These are the tri-services. Third thing, मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, he was the chief guest, he is the president of France. So obviously in international relations we will see a few deals getting done with France, but he was also the chief guest of Republic Day 2024, and there was also a contingent from France for this Republic Day. So generally हम outside forces का contingent को allow नहीं करते, but in this Republic Day we had a contingent from France marching on Republic Day. Lastly, 29th January, this is the traditional day of beating retreat ceremony. So what happens is, in the Republic Day parade we have, all the army people and all these people marching. On 29th, till 29th it goes on. So even if you go tomorrow or today or day after tomorrow, you will find that they are marching there. On 29th, this whole program is finished, and that is called beating the retreat ceremony. And after that, you will see Republic Day festivities are over. So it's about 1 week program. Basically, they start marching a few days before Republic Day. They also have to practice about it, right? Let us move forward and see what exactly changed on 26th of January 1950. Why is this day very important? तो अभी तक तो हमने देखा है कि इस वाले में क्या था, अब इंपॉर्टेंट क्यों है, हुआ क्या उस दिन. तो वी हैव अ फोटो हियर ऑफ बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट. सो व्हाट हैपेंड वाज, ही बिकेम हेड ऑफ स्टेट ऑन 26th of January 1950. उनके पहले हेड ऑफ स्टेट वाज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, and he was appointed by, formally appointed by king or queen of Britain, crown of Britain. So basically we were a dominion till 26th of January. After 26th of January we became a republic. इसके पहले इंडिया इंडिपेंडेंट तो था, लेकिन गवर्नर जनरल था जिसको किंग अपॉइंट करता था, गवर्नर जनरल प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता था, और उसके बाद से हमारा पूरा सिस्टम चल रहा था. नाउ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, 25th of January को इट डिसबैंडेड, एंड 26th of January से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आवर फर्स्ट पार्लियामेंट. उसके पहले भी उसने पार्लियामेंट रिलेटेड काम किए थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, इट वाज डिक्लेयर्ड एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्वियसली इलेक्शंस वर हैपनिंग आफ्टर 1 or 2 years. तो 1951-52 में जाकर के इलेक्शंस हुए, बिकॉज इलेक्शन कमीशन तब जाकर के बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी वो तब जाकर के एग्जिस्टेंस में आई थी. नाउ ऑल पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट, एजी, ये वो दुनिया भर के जितने भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो इफेक्ट में आ गई. लोग जो मिनिस्टर्स थे वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो गए. सो एवरीथिंग, द होल सिस्टम सॉर्ट ऑफ चेंज्ड टू अ रिपब्लिकन सिस्टम फ्रॉम अ मोनार्किकल सिस्टम. एंड उसके पहले जो हमें चला रहा था वो था एक्ट ऑफ 1935. अब हमारे पास क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950. So why 26th of January? If you read the preamble of the constitution, which is in fashion nowadays, you will see the preamble of the constitution mentions the date 26th of November 1949. बोलता है कि हमने इस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स कर लिया. सो व्हाट हैपेंड इज, कॉन्स्टिट्यूशन वाज फिनिश्ड, उन्होंने कहा 2 महीने रुक जाते हैं,
1950 के 26 जनवरी को हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे, हम रिपब्लिक बन जाएंगे। वाई? सो वी हैव अ वेरी ओल्ड फोटो ऑफ मिस्टर नेहरू हियर, जवाहरलाल नेहरू, and this is in Lahore, which is now in Pakistan. So what happened was 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, लाहौर सेशन बोलते हैं उसको। लाहौर इज ऑन रावी रिवर के किनारे वो सेशन हुआ, और वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन भी कहते हैं। रेजोल्यूशन मींस कि एक तरह का उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, राइट, वी विल डिक्लेयर दिस। सो ही डिक्लेयर्ड कि हम अब जो फाइट करेंगे वो पूर्ण स्वराज के लिए करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए करेंगे, रादर देन बीइंग अ डोमिनियन। तब तक उनकी डिमांड थी कि हमको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए, गवर्नर जनरल बनाया जाए, यहां पे इलेक्शंस हो, ये सारी डिमांड। उन्होंने कहा अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, वी वांट द ब्रिटिश टू बी आउट ऑफ इंडिया, राइट। एंड दिस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, उसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। उसके पहले भी 31 दिसंबर को जब उनका सेशन खत्म हुआ तो उन्होंने ये, उस समय पे कांग्रेस का फ्लैग हुआ करता था, फॉर्मली अडॉप्टेड इन 1931, दिस वाज कॉल्ड स्वराज फ्लैग। इसमें बीच में देखोगे देयर इज ओनली वन डिफरेंस, यहां पे चरखा है। दिस इवन टुडे इज द फ्लैग ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो ये जो फ्लैग था इन्होंने वहां पे अनफर्ल किया था लाहौर में 1930 में, 31 दिसंबर 1929 में, और अगले दिन भी। और उसके बाद से 26 जनवरी को अक्रॉस द कंट्री दे टुक अ प्लेज दैट दिस इज आवर इंडिपेंडेंस डे, वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी। तो उन्होंने कहा कि उस डेट को कॉमेमोरेट करने के लिए हमें रिपब्लिक डे उस दिन बना देना चाहिए, ताकि उस डेट को हम लोग याद रखें, राइट। नाउ दिस वाज डन बाय जवाहरलाल नेहरू, सो जस्ट रिमेंबर दैट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम। अब एक बहुत अच्छी खबर इस बीच में आई है, जो पद्मा अवार्ड्स हैं और भारत रत्न अवार्ड हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस साल भारत रत्न दिया गया है बिहार के कर्पूरी ठाकुर को। दिस इज द फोटो ऑफ कर्पूरी ठाकुर। ही वाज अ सोशलिस्ट लीडर, डाइड लॉन्ग बैक इन 1980s. He was two-time CM of CM of Bihar 1970-71 and 77 to 79. That is during the Janata Party government in center. He was the Janata Party CM in Bihar. ठीक है, तो he was a socialist लीडर, और उसको किस नाम से जाना जाता है? जननायक के नाम से भी उनको जाना जाता है। अब उनका सबसे बड़ा काम क्या था जिसके लिए उनको एक भारत रत्न दिया जा रहा है? दैट इज रिजर्वेशंस फॉर ओबीसी। सी दोज पीपल हु हैव फॉलोड सम सॉर्ट ऑफ conversation narrative on reservation, they know that OBC reservations came after 1990 during मंडल कमीशन रिपोर्ट, तो उसके बाद में आए थे। लेकिन बिहार में उसके पहले ही 26% रिजर्वेशन किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर ने। एंड दैट ही डिड व्हेन ही वाज सीएम 77 to 79, राइट। उस समय उन्होंने एक मुंगेरी लाल कमीशन बनाया था, उसके बेसिस पे उन्होंने वहां पर स्टेट गवर्नमेंट में पहले ही बोला कि हम ओबीसी रिजर्वेशन कर देंगे। अभी भी बिहार के जो लीडर्स हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, इन सारे लीडर्स के जो गुरु हैं, पॉलिटिकल गुरु हैं, मेंटोर थे, वो कर्पूरी ठाकुर थे। सो ही लिव्ड अ सोशलिस्ट लाइफ, ही डाइड अ पुअर पर्सन, एंड ही डिडंट एक्चुअली क्रिएट एनी पॉलिटिकल लीगेसी फॉर हिज चिल्ड्रन, बट स्टिल एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ बिहार। सेकेंडली, अब देखो इसके आगे ना हमारे जो नेशनल अवार्ड्स हैं, भारत रत्न के नीचे होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, लास्टली पद्मश्री। दीज आर 4 कैटेगरीज। पद्म विभूषण और भारत रत्न यू हैव टू नो फॉर एवरी ईयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पद्मश्री एंड पद्म भूषण यू हैव टू रिमेंबर ओनली फॉर योर स्टेट इफ यू आर गिविंग एनी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम। जैसे कोई लोग महाराष्ट्र का एग्जाम देंगे या यूपी का एग्जाम देंगे या कहीं का भी एग्जाम देंगे, तो वहां के लिए आपको उनके जो पद्म भूषण और पद्मश्री है वो याद होने चाहिए। बाकी सारे याद नहीं भी हैं तो 100% चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो किस किस को पद्म विभूषण मिला उनको भी हम देखेंगे। पहली है वैजयंती माला बाली। वैजयंती माला के नाम से फेमस है तमिलनाडु की आर्ट के लिए। शी वॉज बेसिकली अ डांसर एंड एक्टर इन मूवीज, तो हिंदी मूवीज बहुत सारी करी है वैजयंती माला ने, तो उनको ये दिया गया है। दूसरे कोनिडेला चिरंजीवी। चिरंजीवी को सब लोग जानते हैं, चिरंजीवी इज अ एक्टर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है, बड़े एक्टर हैं। देन वेंकैया नायडू, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है बिंदेश्वर पाठक, ही डाइड दिस ईयर, इंपॉर्टेंट।
he did social work. What social work did he do? He was basically बिहाइंड व्हाट इज कॉल्ड सुलभ शौचालय। तो सुलभ फाउंडेशन जो है, सुलभ शौचालय जो चलाता है पूरे देश में स्वच्छ भारत के लिए अभियान से पहले भी उसके लिए जो काम कर रहा था वो बिंदेश्वर पाठक का शुरू किया हुआ है, राइट। एंड लास्टली वी हैव पद्मा सुब्रमण्यम, आर्ट के लिए उनको, और ये तमिलनाडु से मिला है। तो इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपका इस साल का रिपब्लिक डे रिलेटेड जो चीज है वो कवर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अगेन, बाय बाय।